Hello everyone, once again welcome to the selection classes. So this is a continuation in which I am going to take top 100 questions for the upcoming Z examination, and I have already uploaded 30 question in the part 4, and today will be the part 5 in which I am going to take another 5 to 10 questions for the exam. So we have the first question and it goes like it: how many sets x and y where x and y are the distinct integers are possible such that product of x and y is equals to the product of the given numbers, right? So ये basically distribution का problem है that I want x into y and that should be equals to 3 into 13 into 23 into 33. तो 33 को आप प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं 3 into 13 into 23 and this will be 3 into 11. So this is 3 square 11 into 13 into 23. Hopefully it is clear to everyone now. Basically whenever we have we want to distribute n identical objects among are distinct, so formula is given n plus r minus 1 c r minus 1, and it is the formula where r can take 0 as well. आप किसी को 0 भी दे सकते हैं. So if I consider the same concept, so we have x into y and 3 square. अब जो 3 की पावर 2 है वो x और y में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, so that can be done in 2 plus by this is now n and this is x and y are x and y r की वैल्यू यहाँ पे 2 है. 2 plus 2 minus 1 c 2 minus 1, so that is 3 c 1, 3 ways, and there are 3 ways of distributing like x square y 0, x 0 y 2 or x y. So these are the 3 possible cases. Hopefully you get it. Now in the similar way, if I want to distribute other powers, if I want to distribute other powers like x and y को अगर हम 11 assume करते हैं तो it has the power of 1, right? Means we want to power 1 distribute power 1 among 2, so this can be done in one way. So 1 plus 2 minus 1 c 2 minus 1, so this is 2c. So this is two ways, right? आप या तो 1 x को दे दें या y को दे दें, it is up to you. So similarly अगर मैं एक्स वाई इक्वल्स टू 23 अज्यूम करता हूँ तो यहाँ पे भी 2 वेज बनेंगे बिकॉज इट हैज़ अ पावर 1. आप किसी दोनों में से एक को दे सकते हैं, एंड इट इज़ ट्रू फॉर 13 ऑल्सो, राइट? एक्स वाई इक्वल्स टू 13. So we have another 2 ways. So if I consider total number of ways, so that is a product of all the possible cases, that is 3 case for the first case, then 2 into 2 into 2. This is 2, 2 and 2. So this is going to be 24. सो 24 वेज इसका राइट आंसर है. होपफुली आपको ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए. कंसेप्ट ये होता है कि अगर आपके पास पी क्यू आर 3 नंबर्स हैं एंड वी हैव ए की पावर m, बी की पावर n, सी की पावर in place of r I can assume any other integers as well or variable that I am taking k for example. So we have to distribute m among pqr, so this can be done in m plus 3 minus 1 c 3 minus 1, ऐसा होता है ना ये. सिमिलरली n को भी डिस्ट्रीब्यूट करने के n प्लस 3 माइनस 1 c 3 माइनस 1. तो ये प्रोसेस है जब आप n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नॉन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में. सो होपफुली यू गेट इट एंड यू मस्ट नो द कंसेप्ट. मैंने बहुत सारे कंसेप्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो वी हैव अनदर क्वेश्चन एंड इट इज़ अगेन इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल क्वेश्चन. एंड इस क्वेश्चन को टैकल करने से पहले एक इसके पीछे का कंसेप्ट बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ लाइन ax plus by plus c equals to 0 and we have a point p and this point p is perpendicular, right? And it has a coordinate of m and n. So if we are interested to find the distance, तो distance होता है m और n को इसमें satisfy करा दो, that is am. In place of x we have to put m and in place of y we have to put n, so b into n plus c, and it has to be divided by coefficient of
एक्स एंड वाई जो लेना है उनका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. So this is the distance formula that I am going to use to make this question easy, and you must remember it is known as the distance of a point from a line. ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये बात आपको पता होना चाहिए, राइट. चलिए अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में. सो क्वेश्चन पढ़ते हैं एंड उसके बाद सोल्यूशन. सो आई एम गोइंग टू इरेज इट. यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक इट. ओके. सो नाउ इट इज सेइंग in a rhombus ABCD, the diagonals meet at 5, 7. If the equation of the side AB is this one and the equation of side CD is given, so we have to find the product of MN. So for that I have to make a rhombus, and I have made it, and it is like that, right? ABCD, and these are intersecting, these diagonals are intersecting at the point 5, 7, right? Let the point is E. No problem. Now equation of line AB is given to us 3x plus 4y plus 9 equals to 0, and that of CD is given to us 3x plus my plus n equals to 0, right? Now एक चीज आपको पता होना चाहिए, rhombus these two lines are parallel, opposite sides parallel होती है, means AB should be parallel to CD for the rhombus, and similarly AD should be parallel to BC. ये दोनों बातें आपको पता होना चाहिए. एंड जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं. हाँ, rhombus के डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होना चाहिए, राइट. चलिए अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे चलते हैं. तो सबसे पहले तो फॉर टू पैरेलल लाइंस स्लोप्स आर इक्वल. तो ये तो सबसे पहली बात है कि दो पैरेलल लाइन है तो उनकी स्लोप्स इक्वल होती है, एंड स्लोप होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर m इज अ कोफिशिएंट ऑफ x. तो अगर मैं लाइन ए बी की बात करता हूँ, वी हैव 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -9, y इक्वल्स टू -9 अपॉन 4 -3 अपॉन 4x. मीन्स इसका जो स्लोप है वो है -3 अपॉन 4. होपफुली इट इज क्लियर. नाउ अगर मैं बात करता हूँ लाइन सी डी के बारे में, एंड लाइन सी डी का इक्वेशन इट इज गिवन टू अस 3x प्लस एम वाई इक्वल्स टू -n. सो y इक्वल्स टू -n अपॉन m minus 3 अपॉन m. सो इफ आई कंपेयर दीज टू, एंड यहाँ पे x भी आएगा. सो एज आई टोल्ड यू, ये जो कोफिशिएंट है, ये जो कोफिशिएंट सेम होना चाहिए तभी स्लोप इक्वल आएगी. सो बाय द कंपैरिजन आई कैन से m इक्वल्स टू 4 आएगा, राइट. आप इसको कंपेयर कर लीजिए, नीचे डिनोमिनेटर में 4 है, ये 4 आएगा, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है. तो आई कम टू नो कि m की वैल्यू 4 है, बट यहाँ पे n की वैल्यू भी निकालना है, राइट. n की वैल्यू, ठीक है. अब n की वैल्यू के लिए मैं थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे बात करता हूँ. सो सपोज वी हैव अ रोम्बस ABCD, एंड ये E पॉइंट है. अभी मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला सिखाया था, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ E is given to us 5 and 7, right? And if I want to take the equation of this, this is 3x plus 4y equals to -9, right? Or I can say plus 9 equals to 0, one and the same thing. So ये जो डिस्टेंस होती है बेसिकली इस पॉइंट से इस लाइन तक की डिस्टेंस जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये दोनों तरफ सेम होगी. ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, मतलब ये भी डी है तो ये भी डी होगा, तो एक तरफ का डी निकाल लेते हैं, है डी, ठीक है. फॉर ए बी के लिए बात कर लेते हैं पहले. तो मैंने बोला था इस पॉइंट को सेटिस्फाई करा दो. सो 5 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 4 प्लस 9 डिवाइड बाई कॉफिशेंट जो एक्स एंड उसका स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. So this is going to be 52 upon 5. Hopefully it is clear, right? So ये जो डिस्टेंस है 52 upon 5 है. Now for CD line जो डिस्टेंस है वो 52 upon 5 है. अब डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो इक्वेशन दे रखी है इसकी mx प्लस कितना था 3x प्लस my plus n equals to 0, and we have already calculated that m equals to 4 is here, right? So this equation become 3x plus 4y plus n equals to 0. So distance formula लगाते हैं, distance of E from
CD, right? So that is nothing but point को satisfy कराएंगे. So 3 into 5 plus 4 into 7 plus n and modulus divided by 3 square plus 4 square, and this is given to us 52 upon 5, right? तो ये आ जाएगा 43 प्लस n अपॉन 5 मॉडुलस के अंदर 52 अपॉन 5, राइट? तो जब इस मॉडुलस को रिमूव करेंगे, दैट इज 43 प्लस n अपॉन 5 इक्वल्स टू 52 अपॉन 5. तो यहाँ से मॉडुलस रिमूव करने पर एज यू नो एक तरफ ये प्लस के साथ ओपन होगा और एक तरफ ये माइनस के साथ में ओपन होगा, राइट? तो जब ये प्लस के साथ में ओपन होगा तो n की वैल्यू आएगी माइनस का 9, और यहाँ से अगर मैं ओपन करूँगा तो दैट वुड बी माइनस का 95. तो इफ n इक्वल्स टू माइनस 9, if n equals to minus 9, so this is same line as AB, but line AB is not same as CD, so this is not the valid answer. So I can say n equals to minus ka 95 is the true solution. So ultimately we have to find the product of m and n. So m is 4 and n is minus 95, so minus 380 is the right answer of the question. So hopefully you got the concept. So यहाँ पे हमने एक बात सीखी कि किस तरह से हम डिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम द लाइन टू गेट द सोल्यूशन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं अभी हम. वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन and x, y, z are the real numbers such that this is the equation and we have to find the value of x upon y plus y upon z. तो एज आई ऑलवेज टेल कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक है या स्क्वायर पावर है और लीनियर पावर है तो ट्राई टू मेक द होल स्क्वायर. तो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करेंगे. तो यहाँ पे 12xy है और 24yz है. तो भाई 12xy में आपको 2 इंटू 2 2 जा 4 3 जा 12, एंड इसमें आपको 2 3 जा 6 4 जा 24. ठीक है, तो x और y के साथ अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे आपके पास ये 2x का होल स्क्वायर बन रहा है, एंड y में अगर मैं देखूंगा तो मुझे यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर बनाने का मौका मिलेगा. तो आई कैन से 3y का होल स्क्वायर. लिए आपके पास -12xy. आप इनको कंप्लीट करके देख लीजिए. ये 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर बनेगा. चाहे तो आप ओपन करके देख लीजिए. अभी 25y में से मैंने 9y स्क्वायर यूज़ कर लिया, तो वी आर लेफ्ट विद 16y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस का 24yz. क्या ये भी स्क्वायर बन रहा है? तो ये 4y माइनस 3z का होल स्क्वायर बन रहा है. आप इसको भी चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही बात है. इसका मतलब 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4y माइनस 3z का होल स्क्वायर, ये ज़ीरो है. तो ये तभी पॉसिबल है, दो स्क्वायर नंबर ज़ीरो तभी पॉसिबल है जब ये इंडिविजुअल ज़ीरो होंगे. इट मीन्स 2x इक्वल्स टू 3y एंड 4y इक्वल्स टू 3z. ये इंडिविजुअली आपने ज़ीरो कर दिया. यहाँ से x अपॉन वाई की वैल्यू आएगी 3 अपॉन 2. एंड सिमिलरली if I talk about y upon z, this is 3 upon 4. So we have to find the sum of these two values. So now it is easy. Sum will be 3 upon 2 plus 3 upon 4. So 4 is LCM and this is going to be 6 plus 3, 9 upon 4, 2.25. Option number B correct. Hopefully it is clear. Moving to the next question. We have another beautiful question. So in this question, x, y, z are the three positive numbers in the geometric. So these are in GP and you should know that GP का मतलब है y square of the middle term should be equal to the product of the different terms, given terms, right? So now it is given x की power 15 equals to y की power 25 equals to z की power n. Let it be k. For example तीनों को k के इक्वल अज्यूम कर लेते हैं. यहाँ से x की वैल्यू आएगी k की पावर 1/50, y की वैल्यू आएगी k की पावर 1/25, एंड यू शुड नो ना दैट x की पावर m इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल y है, सो x वुड बी इक्वल्स टू y की पावर 1/m. ये आपको कंसेप्ट है, पता होना चाहिए, राइट? उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिखा है. एंड z इक्वल्स टू a की पावर 1/n. होपफुली इट इज क्लियर. नाउ y स्क्वायर a की पावर m का पावर n, तो a की पावर mn होता है. तो y स्क्वायर का मतलब है दैट इज k की पावर 1/25 एंड इसका स्क्वायर. सो ये हो जाएगा k की पावर 2/25 एंड दैट शुड बी इक्वल द प्रोडक्ट ऑफ x एंड z.
तो x की वैल्यू है k की पावर 1/25 इंटू k की पावर 1/n. So a की पावर m and a की पावर n, we have the same base, so power can be added, right? So if I use the same concept again, so k की पावर 2/25 should be equals to k की पावर 1/25, नॉट 25, k की पावर 1/15 था, सॉरी दिस इज 1/15, राइट, 15 आएगा यहाँ पे, प्लस 1/n. तो वी हैव द सेम बेस, सो आई कैन रिमूव द बेस और आई कैन कंपेयर द पावर. इट मीन्स 2 की पावर 20, मतलब 2/25 माइनस 1/15 शुड बी इक्वल्स टू 1/n, which implies LCM लेंगे 150, so this is going to be 12 minus 2 equals to 1/n, n equals to 75. So n equals to 75 is the right answer. तो इसका right answer n equals to 75. Hopefully you got it. If you have any problem, you can comment. Moving to the next question. This is from geometry and it is saying a semicircle S1 is drawn with line segment AB. एक semicircle बनाया है with the line segment AB, A and B. And इसका जो length है वो x दे रखा है, right? इसका मतलब जो इसका रेडियस हो जाएगा, इसको मैं अगर O मान लेता हूँ, सेंटर इन्होंने सी अज्यूम कर रखा है, नीड नॉट टू टेक एनी डिफरेंट वेरिएबल, सी मान लेते हैं, राइट? नाउ अनदर टू सेमी सर्कल्स S2 एंड S3. ये सेमी सर्कल S1 है, S2 AC पे बनाया है एंड CP पे बना. दीज आर आइडेंटिकल. दिस इज S2 एंड दिस इज S3. दी सेमी सर्कल both are lying inside S1 and a full circle C1 is drawn in such a way that it is tangential to all three circles. मतलब एक ऐसा सर्कल बनाना है जो तीनों को टच करे. So this is something like that, right? ये हो गया. Now we have to find the radius of circle C1, right? In terms of x निकालना है. तो मान लेते हैं इसके रेडियस को हम कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग इट, मेरा मन के मान लेते हैं के, राइट? अगर मैं इसके रेडियस की बात करता हूँ तो जो सेमी सर्कल है इसका रेडियस होगा, हाँ, x/4. ये रेडियस है, हाँ. डायमीटर x/2 होगा बिकॉज दिस कंप्लीट पोर्शन इज x/2. But if I talk about the radius would be x/4. Hopefully you get it. Now थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्वेश्चन ओवर हो जाएगा. अगर मैं इस टोटल की बात करता हूँ, इस पॉइंट की, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है, इसकी जो लेंथ होगी वो होगी x/2. होपफुली यू गेट इट बिकॉज दिस इज अ रेडियस. भाई अगर मैं इस सर्कल का रेडियस की बात करता हूँ जो आपके पास S1 है, S1 का जो रेडियस होगा, अगर मैं इसको R1 मान लेता हूँ तो ये x/2 होगा. होपफुली इट इज क्लियर. एंड डायमीटर ऑफ कोर्स x है बट रेडियस वुड बी हाफ. एंड इसके रेडियस को मैंने k अज्यूम कर लिया है, हाँ. तो इस लाइन को अगर मैं यहाँ से मानता हूँ, दिस इज, ये मैंने सर्कल वाला ये वाला लाइन बनाया है एंड दिस लाइन इज एक्चुअली दिस वे. सो इसका जो लेंथ हो जाएगा दैट इज x/2. ये ऊपर वाली लेंथ भी k होगी एंड टोटल आपके पास x/2 है तो x/2 माइनस k. होपफुली यू गेट इट. एंड अगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर दो सर्कल टच करते हैं तो उनके सेंटर पॉइंट हमेशा जब आप ज्वाइन करोगे तो टचिंग पॉइंट से पास होंगे. तो ये जो लाइन है जो मैंने यहाँ पे स्लैंट बनाई है, इसकी लेंथ हो जाएगी भाई x/4. इसका रेडियस x/4 प्लस k, x/4 प्लस k. होपफुली इट इज़ क्लियर. एंड ये जो रेडियस है, ये जो लाइन है, दिस इज x/4. ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा होपफुली कंस्ट्रक्शन. नाउ इट इज़ अप टू यू कि आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे, राइट? तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के बता देता हूँ. x+4/k का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू x/2 माइनस k का होल स्क्वायर प्लस x/4 का होल स्क्वायर, राइट? तो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं इसको, x/4 प्लस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x/2 माइनस k होल स्क्वायर प्लस x² 4. ठीक है, तो x² 4 की वैल्यू होगी x/4 प्लस k का होल स्क्वायर माइनस x/2 माइनस k का होल स्क्वायर. तो a² माइनस b² को यूज करूंगा तो दैट वुड बी a प्लस बी एंड a माइनस बी. सो x² 4 शुड बी इक्वल्स टू, एक बार इनको प्लस करेंगे तो x/4 प्लस k प्लस x/2 माइनस k
एंड एक बार इनको माइनस करेंगे तो x/4 प्लस के माइनस का x/2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का k। तो ये वैल्यू k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 4। सो दिस इज x प्लस 2x एंड ये हो जाएगा, यहाँ पे भी एलसीएम ले लेता हूँ मैं 4, तो दिस इज x प्लस 8k हो जाएगा ये 4k प्लस 4k 8k माइनस का, एंड दैट वुड बी माइनस का 2x। तो ये x² / 4k इक्वल है, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x² इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3x एंड ये हो जाएगा 8k माइनस x। ठीक है, तो यहाँ से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 24k माइनस 3x। होपफुली इट इज़ क्लियर। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी 4x इक्वल्स टू 24k। तो k की वैल्यू हो जाएगी 4x/24 और 1/6। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि k की वैल्यू 1/6, यहाँ से रिजल्ट आपके सामने आ गया। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन दिस इज वेरी ब्यूटीफुली डिजाइंड क्वेश्चन एंड वी हैव द टर्म्स जो कि कुछ रेशनल और इरेशनल फॉर्म में दे रखी हैं, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे। अगर मैं पहली वाली टर्म को ऑब्जर्व करता हूँ, दिस इज √17 प्लस √17² -1। ठीक है, पहले इसी टर्म को थोड़ा सा फोकस करते हैं इसी के ऊपर। सो दैट वुड बी 17 एंड a² - b² करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर आएगा a + b एंड a - b, राइट। आई होप यू एग्री ऑन दिस। नाउ दिस इज 1/√17 प्लस ये हो जाएगा 18 × 16 स्क्वायर रूट के अंदर। एंड अगर इसके फिर से अगर मैं इसको थोड़ा सा एक स्टेप और देखता हूँ तो दिस इज √17 प्लस इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 4 एंड 18 होता है 3√2, तो आई कैन राइट 4 × 3√2, राइट। एंड दिस इज नथिंग बट 1/√17 प्लस, तो दिस इज 12√2, राइट। तो यहाँ से अगर मैं इसको 2 × 2 × 2 × √2 × 3, ठीक है। तो 2ab वाली अगर मैं टर्म को देखता हूँ, दिस इज 2, दिस इज a एंड दिस इज b, क्या ये होल स्क्वायर बन सकता है? सो इफ आई राइट दैट इज a इज एक्चुअली 2√2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 2√2 × 3। सो ऑफ कोर्स ये बन गया होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको देख पाता हूँ थोड़ा सा और मैं ऊपर की तरफ लिख देता हूँ, सो दिस इज 3 + 2√2 का होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के अंदर है ये। सो ये जो रिजल्ट आएगा वो 3 + 2√2 आएगा एंड इसको अगर मैं रेशनलाइज करता हूँ 3 - 2√2 और 3 - 2√2, सो दैट इज 3 - 2√2, राइट। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब जो पहला ब्रैकेट है वो 3 - 2√2 है, राइट। तो 17 को आपने जो लिखा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 17 को अगर मैंने स्प्लिट किया है तो यू कैन सी दिस इज 3 का स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं 15 को देखता हूँ तो 15 कैन बी रिटन एज, सो दिस कैन बी रिटन एज, अगर आप इस 15 को देखेंगे दैट इज 2√2 का स्क्वायर 8 प्लस √7 का स्क्वायर। ये 15 में ब्रेक हो जाएगा, तो ये आप लिखोगे 2√2 माइनस का √7। इसको आप लिखोगे √7 प्लस √6 का होल स्क्वायर 13 को, तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6। एंड दिस वे अगर मैं लास्ट वाले टर्म पे आऊँगा तो 3 को मैं लिखूंगा दैट इज √2 का स्क्वायर प्लस 1। होपफुली यू गेट इट। नाउ इफ आई एम गोइंग टू राइट इन द सीक्वेंशियल मैनर, सो यहाँ पे जो टर्म आएगा तो 6 मतलब 7 आ रहा है 6 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे √3 माइनस √2 आएगा, फिर प्लस √3 माइनस 1 आएगा। तो ये जो नंबर हैं ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो वट एवर वी आर लेफ्ट विद दैट वुड बी द आंसर, दैट इज 3 - 1 2। तो प्लीज़ जो मैंने लिखा है इस बात को सिंप्लीफाई करके देखना फॉर अदर टर्म्स,
so that you come to know the taste of the question. So next question पे चलते हैं. Again, this is very beautiful question, and it is saying of the height h above the ground of an object thrown vertically upward from the ground at a speed of 60 t second after it is thrown is given by. मतलब एक बॉल को आपने फेंका है with the velocity of 60 meter per second, and at any instant the height is given as a 60t minus 5t square. So find the total distance, हाँ, in meter covered by the object. Basically अगर आपने क्लास 11 की फिजिक्स पढ़ी है तो ठीक है, नहीं तो ये जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से जाता है. एक बॉल को जब आप ऊपर फेंकेंगे तो मैक्सिमम हाइट को टच करके वापस आएगा, तो जो डिस्टेंस होगी वो ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम हाइट होगी. इसका मतलब हमको यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन करना हाइट का. ठीक है, तो वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज h इक्वल्स टू 60t माइनस 5t स्क्वायर. तो यहाँ पे a जो है लेस देन 0 है बिकॉज दिस इज द लीडिंग कोफिशिएंट. इफ़ यू नो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो टर्मिनोलॉजी है क्या होता है, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. यहाँ पे a अगर लेस देन 0 आता है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है, एंड इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 0 तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आती है. ये सब मैंने काफ़ी बार बता रखा आपको. ठीक है, नाउ एंड आपके पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन आ गया 5t स्क्वायर माइनस 5t स्क्वायर प्लस का 60t, एंड इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी ऑकर सेट हमेशा ध्यान रखना है माइनस बी अपॉन 2a पे. माइनस बी मतलब जो कॉफिशिएंट ऑफ टी होता माइनस बी, तो माइनस 60, 2 इंटू ए की वैल्यू माइनस 5 है तो 6 आ जाएगा. मतलब यहाँ पे t इक्वल्स टू 6 पे आएगी वैल्यू, बट कितनी वैल्यू आएगी, तो आप t की वैल्यू 6 इसमें पुट कर दीजिए. माइनस 5 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 60 इंटू 6, दैट विल गिव मी 180 मीटर. राइट, नाउ इट इज वेरी इजी टू फाइंड द डिस्टेंस. सो डिस्टेंस इज एक्चुअली ट्वाइस द मैक्सिमम हाइट दैट इज 180 मीटर. तो 360 मीटर इसका राइट आंसर है. तो होपफुली यू गेट इट कि किस तरह से मैक्सिमाइजेशन करना है या क्या की पॉइंट होते हैं फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. k triple is defined as k upon 2, k upon 3 and 3k upon 7, where all three terms in the bracket are positive integers. So these are integers and वो भी positive वाला integer, right? And it is given k is less than equals to 1000. So what is the largest value of k, right? So for bracket values to be integer, k has to be multiple of LCM ऑफ 2 3 7. भाई तभी जाके होगा ना. आपको k2 का भी मल्टीपल चाहिए, k3 का भी, k7 का भी मल्टीपल होना चाहिए. मतलब k शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 42. तो k शुड बी 42 टाइम्स ऑफ सम मल्टीपल, and that is 42 का मल्टीपल, तो 42 into some number m. Now k is given to us that is less than equals to 1000. So we have to find the k is less than equals to 1000. So 42m is less than equals to 1000. So m should be equals to 1000 upon 42. So this is going to be 42 into 2 84 and बचेगा 16, and 42 into 3 126. So 23 point something means m can be 23. So k should be equals to 42 into 23. So 23 into 2 46, 4 आपका कैरी हो जाएगा. 23 इंटू 4 92 प्लस 4 96. सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ के. होपफुली यू गेट इट. थोड़ा इजी था बट क्वेश्चन में जो लॉजिक था बड़ा इंपॉर्टेंट था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एंड वी हैव टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x की पावर 5, x की पावर 9, x की पावर 13 प्लस x की पावर 17, इसको हम डिवाइड करेंगे x इंटू एक्स प्लस 1 से, राइट. तो इसमें रिमाइंडर निकालना है. वाई आई हैव रिटन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को जब आप x कॉमन लेंगे तो x प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा. तो ऊपर से भी x कॉमन आपको दिख रहा होगा, तो दिस इज गोइंग टू बी 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर
8 प्लस एक्स की पावर 12 प्लस एक्स की पावर 16 एंड x इंटू एक्स प्लस 1, राइट। तो यहाँ से ये जो नंबर है x का तो कोई रोल नहीं बचेगा, बट ये जो है x प्लस 1 से आपको डिवाइड करना है। तो जब आप x प्लस 1 से इसको डिवाइड करना चाहते हो तो मीन्स x की वैल्यू को 1 ले सकते हैं, -1। अगर ये रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मल्टीपल एस नहीं है, तो जो बचेगा वही हमारा रिमाइंडर होता है। तो x की वैल्यू -1 रखेंगे इसमें, तो दैट वुड बी 1 माइनस 1 प्लस -1 की पावर 4 -1 की पावर 8 -1 की पावर 12 प्लस -1 की पावर 16। होपफुली इट इज क्लियर। नाउ दिस इज नथिंग बट, सो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, दिस इज 5। इसका मतलब x प्लस 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 आएगा। तो रिमाइंडर 5 है, प्लस x आपके सामने बाहर भी लिखा है, सो आंसर हो जाएगा रिमाइंडर वुड बी 5 इंटू एक्स। सो बिकॉज ये x भी लिखा है ना आपके सामने, तो आंसर आएगा इसका 5x।